So this is your syllabus for 2020-21. ठीक है. So there are some portions which are deleted, and suppose you go to the earlier syllabus in 2019 and 20, there were nine units, and this year also there are 9 units. Means as a whole no unit has been deleted, all the units are present, but inside the unit, like suppose electrostatics chapter 1 and 2 or current electricity, some of the portions are deleted. So this is the syllabus. Come to chapter 3 current electricity, what we are going to learn from this chapter. So first one is the first part of this chapter is equivalent to your class 10th. There are so advanced, and in the second part there are some new things which you have to learn, like you can see electric current, flow of electric charge in a metallic conductor. These are in class 10th. Drift velocity, this is a new topic. Mobility and their relation with electric current, this is a new topic. Ohm's law, Ohm's law, this you have learned in class 10th. Electrical resistance, this was also in class 10th. VI characteristic, linear, non-linear, this was also in class 10th. Electrical energy and electrical power, this was also in class 10th. Electrical resistivity and conductivity, and temperature dependence of resistance. So many of the topics are of class 10th, although they are in a higher form. The second half of this chapter, that is you can tell chapter or unit, that is internal resistance of a cell, potential difference and EMF of a cell, combination of cell in series and parallel. We have learned combination of resistance in series and parallel, but this is combination of cells. Then Kirchhoff's law and its application, this is new topic. Wheatstone bridge and meter bridge, we have to learn only the qualitative idea. Then potentiometer principle and its application to measure the potential difference, this is also in our practical. So in comparing the EMF of two, so there are two applications of potentiometer. So these are the topics which you have to learn in chapter number 3. Now come to the deleted portions. This is deleted 2020-21. So if we go to chapter number 3, carbon register, there is a topic carbon register and color code of carbon register. This was in 2019-20, this has been deleted. And series and parallel combination of register, this topic is deleted, but what do you think, there is no need to delete this topic, because it was in class 10th also. And series and parallel combination of resistance, although we know this. So only carbon register and color code and series and parallel combination of resistance, this has been deleted. Okay, so this is the total syllabus. In this way we will go chapter wise. Whenever we will start a new chapter, first of all we will see the syllabus, then only we will start. So let us start the chapter number 3, that is करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो मैं कैमरा थोड़ा सेट करूँगा, मुझे 2 मिनट टाइम लगेगा. आप लोग लाइन में बने रहेंगे. पहले स्क्रीन को हटा देता हूँ. ये स्क्रीन हट गया. सो चैप्टर नंबर 1 and 2, electrostatics. Electrostatics means the study of the properties of an electric charge at rest. And here in chapter 3 we will learn, if a charge is in motion, whether inside a wire or anywhere, then it produces current, that we will learn. This is charge in motion, that is called current electricity. ठीक है. So from class 10, you know, suppose there is a conductor, like this is a wire. Initially if nothing is connected to the conductor, जैसे एक वायर रखा हुआ है ऐसे normally, तो whether the electrons are in motion or not, the electrons are in motion, but as the motion is random, that's why there is no current. But what will happen if you connect a cell or a battery to a wire like this? So these arrow marks are electrons. So what will happen, this is the positive, this is the negative. So all the electrons, they will start moving towards the positive end. The cell provides a potential difference, that's why
the electron starts moving towards the positive end, and whenever as a whole all the electrons starts moving in one direction, they produce as a current, that is called electric current. So here if you are applying a potential V and suppose I amount of current is flowing in the wire, what is the direction of electric current? The direction of electric current is taken opposite to the negative charge, like electrons are flowing from right to left, so the current will be from left to right. ठीक है. Now before going to the formula and all the other things, we have learned in class 10th also what is a current. Current actually होता क्या चीज़ है. जैसे suppose you take पहले हम समझते हैं water current और air current. Suppose you dip your hand in the water of a pond and dip your hand in the water of a river which is flowing. तो in which case you will feel a force. पौंड में जैसे अगर हम हाथ डुबाते हैं तो क्या हमको कोई धक्का लगेगा? क्योंकि नहीं लगेगा, क्योंकि पौंड का वाटर जो है वो स्टैटिक होता है, दैट इज द वाटर इज एट रेस्ट और चार्ज इज एट रेस्ट. बट इन ए रिवर और इन ए टेप, इन ए पाइप, इफ द वाटर इज फ्लोइंग, जैसे बोरवेल से पानी निकल रहा है पाइप से बहुत तेज़ी से, उसके सामने अगर आप हाथ ले जाएंगे तो क्या होगा? तो यू विल फील ए फोर्स, आपका हाथ जो है धक्के की वजह से पीछे हो जाएगा. तो या पॉन्ड में ही ऐसे करो कि पॉन्ड में वाटर जब तक रेस्ट में है तो आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं जैसे गड्ढा कर दूँ या रास्ता दे दूँ वाटर को फ्लो होने के लिए, और सपोज द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो क्या होगा? अगेन यू विल फील ए फोर्स. इसका मतलब ये है, उसको बोला जाता है वाटर करंट. मतलब कोई भी चीज़ अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर दे, इट प्रोड्यूसेस ए करंट. जैसे वहाँ पर वाटर करंट होता है, यहाँ पर सिमिलरली व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन बट द मोशन इज रैंडम. थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, लेकिन क्योंकि मोशन रैंडम है, एक तरफ नहीं जा रहे हैं, तो कोई करंट नहीं होता है. लेकिन व्हेन एवर यू अप्लाई पोटेंशियल और यू कनेक्ट बैटरी, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन. तो द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट समझ में आया क्या होता है? एयर करंट भी ऐसे बोल सकते हैं. जैसे अभी आप घर में बैठे हैं, अभी एयर का कोई फोर्स फील कर रहे हैं क्या? एयर आपका जैसे पंखा चालू है सपोज, तो तब भी हमको कोई फोर्स से ज़्यादा फील नहीं होता है. लेकिन अगर स्ट्रॉम हो गया, जैसे बाहर में आंधी तूफान आता है, वहाँ पर आप साइकिल में गए हैं कि कितना फोर्स होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? एट ए टाइम मतलब एयर जो है धीरे धीरे ऐसे ही ब्लो होते रहता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हमको कोई फोर्स पता नहीं चलता. या एयर इज एट रेस्ट ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन जैसे स्ट्रॉम होता है, एक ही डायरेक्शन में एयर फ्लो होना चालू हो जाता है, देन वी फील फोर्स. अगर सामने से एयर आ रहा है तो आपको साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, उसको बोला जाएगा एयर करंट. सिमिलरली यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक साथ इलेक्ट्रॉन्स या आयंस भी हो सकते हैं. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे तो जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट बोलने से सीधा इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं. कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और करंट हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आप पानी लिए, पानी में नमक घोल लिए और उसमें अगर एक वायर का दोनों एंड को जैसे डीप करते हैं और सेल जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? लिक्विड में भी करंट फ्लो होगा. लेकिन वहाँ पर जो लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन है या आयन है? वहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन. तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयंस एज वेल एज एनी चार्ज, हम लोग बोल सकते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन. लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या होता है? घर में जो वायर आप लोगों का लगा है उसमें क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन. इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, लेकिन उसको जनरली हम बोलेंगे चार्ज. चार्ज में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, आयन भी आ जाएगा और कुछ भी आ जाएगा, जो भी चार्ज है. ठीक है. तो व्हेन एवर एनी चार्ज, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, moves in one direction, it produces electric current. अब दूसरा चीज़ इसमें आ गया कि सेल जोड़ देने से ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग. उसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो हम बोलते हैं कि द सेल प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होता है. मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि ये ले सकते हैं एक फोर्स. जैसे आप बहुत सारे लोग खड़े हो एक जगह और कोई स्टूडेंट करंट नहीं है, सब लोग रेस्ट में है, लेकिन कोई अचानक से कोई जेसीबी लाया या कुछ लाया और धक्का दिया आपको ज़ोर से, तो पूरे बच्चे दौड़ने लगे एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? एक तरफ हो जाएंगे तो क्या होगा?
वीडियो हट गया क्या? 1 मिनट, मुझे वीडियो चालू करने दो फिर से। रोहिता मैडम क्यों फ़ोन कर रहे थे, इसलिए वीडियो हट गया। अब आ गया, वीडियो आया? अरे मैडम, क्लास चल रहा है, मैं कल लगाता हूँ आपको, नहीं? ठीक है, तो अभी जैसे कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए व्हाट यू नीड, वी नीड ए फोर्स। जैसे कोई टेबल रखा हुआ है कहीं पर, वो अपने आप थोड़ी जाएगा, तो एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है। पापा बोले जैसे कि इसको इस रूम में नहीं, उधर वाला रूम में ले जाओ, तो अपने अपने जाइए क्या वो टेबल? हमको उठा के धक्का मार मार के लेके जाना पड़ता है ना। सिमिलर टू मूव एनीथिंग वी नीड ए फोर्स। तो यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं कि द सेल इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। अब सेल के अंदर ऐसे क्या रहता है कि वो फोर्स अप्लाई करता है। जैसे हम मैकेनिकल फोर्स का बात करते हैं, जैसे हम टेबल को धक्का दिए, वो क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स होता है। लेकिन सेल के अंदर ऐसे थोड़े कोई इंजन लगा है कि वो जैसे जोड़ दिए तो वो धक्का दे दिया इलेक्ट्रॉन को और वो मूव हो गया। सेल का अंदर क्या होता है, कोई बता पाएंगे? ये मैं सीधा बेसिक में जा रहा हूँ, क्या होता है एक्चुअली, कोई बता पाएंगे? बताओ, भावना बताओ, सेल के अंदर क्या होता है ताकि वो ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है? जो भी समझ में आए बताओ। और कोई? देवांशी नहीं तो बताओ। देवांशी हो लाइन में तुम? वेरी गुड, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो फोर्स का बात करते हैं, फोर्स का मतलब जरूरी नहीं कि मैकेनिकल फोर्स हो। सेल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को अलग अलग रखा जाता है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे अगर पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये नेगेटिव पार्ट क्या करके उसको रिपेल करता है, तो ऑटोमेटिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आया। करंट क्या होता है, करंट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होता है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया। अगर एक वायर, वो बताऊँ? हाँ हाँ हाँ, वही, वो एग्जाम में क्या लिखना है वो तो अलग है, पहले तो समझ लें, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखते हैं हम, क्लास में पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ करंट का होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? रेट का मीनिंग क्या होता है? रेट का मतलब, वेरी गुड, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स वेदर द चार्ज आर मूविंग फास्ट और मूविंग स्लो। मतलब करंट दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू, मतलब जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा ना। एक साथ सब तुम्हारे ऊपर 1 लीटर पानी आ रहा है एक पाइप से, या छोटा से जैसे गार्डन में हम पानी देते हैं उतना छोटा पाइप से पानी निकल रहा है, तो हम अपना हाथ दिखाए, जितना फोर्स होगा। अगर बोरवेल जो पूरा मोटा वाला पाइप से निकलता है, खेत में जो डालते हैं, उसके सामने हाथ दिलाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन वाटर करंट इज मोर। सिमिलरली इफ़ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज मोर देन करंट विल बी मोर। और टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंट होगा करंट? इन्वर्सली होगा, डायरेक्टली होगा? मतलब चार्ज इन्वर्सली होगा। क्यों इन्वर्सली होगा? क्योंकि चार्ज अगर फास्ट मूव, हाँ बताओ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर चार्ज सपोज दो जगह है, 500 कूलम चार्ज है, लेकिन एक जगह 500 कूलम धीरे धीरे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और दूसरी जगह 500 कूलम चार्ज 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, मतलब ज़्यादा फास्ट जा रहा है। तो ज़्यादा फास्ट ज़्यादा फोर्स कहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होगा? जो तेज़ी से, ये तो हम क्लास 11 में भी पढ़े हैं, मैकेनिक्स है सिंपल। तो कोई चीज़ अगर बहुत फास्ट हो रहा है तो इट कैन प्रोड्यूस मोर करंट, ठीक है। तो फास्ट जा रहा है मतलब उसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए अगर टाइम कम लगता है, मतलब चार्ज का स्पीड ज़्यादा है, तो करंट विल बी मोर, दैट्स वाई करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये समझ में है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मीन्स,
dq means of charge and dt means time. म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दीजिए। उसके बाद फिर जिसको डाउट होगा ना, अनम्यूट करके नाम बता के पूछ। हाँ बताओ। टाइम के साथ, जैसे तुम्हें स्कूल का गेट या अपने घर का गेट को तोड़ना है दौड़ के जाके, ठीक है। तुम्हें मैं अपने गेट से, घर का गेट से 20 मीटर दूर खड़ा कर दिया। वहाँ से तुम धीरे 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 पैदल पैदल गए और गेट को छुए। और दूसरे केस में तुम पूरा पूरा ताकत झोंक दिए, ठीक है। 20-40 मीटर पर सेकंड इतना स्पीड से जाके जोर से धक्के से लगे गेट में, तो गेट किस में टूटेगा? धीरे धीरे जाओ, जहाँ जोर से जाओगे धक्का लगोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब इफ इफ योर स्पीड इज मोर, तो करंट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। स्पीड मोर मतलब टाइम तुम्हें कहाँ पर ज़्यादा लगा? धीरे धीरे जब जाओगे तब कम लगेगा, या दौड़ के जाओगे कम लगेगा? दौड़ के जाएंगे तो कम लगेगा। मतलब इफ द टाइम इज लेस, इट मीन्स योर स्पीड इज मोर, एंड इफ योर स्पीड इज मोर देन द करंट विल बी मोर। तो इसीलिए करंट स्पीड से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन टाइम से क्या हो जाएगा? क्योंकि स्पीड का मतलब होता है वन, टाइम होता है, ठीक है। समझ में आया आप? तो I is equal to dq by dt, rate of flow of charge. It means if dq amount of charge is flowing in a wire in a time dt, then the current will be I is equal to dq by dt. समझ में आया यहाँ तक? तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगा फिर? यूनिट ऑफ करंट आपका होता है कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर, इसका नाम दिया, ठीक है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफ़ी काम किया, तो उन्हीं के नाम के हिसाब से इसका यूनिट दिया गया है एम्पियर। तो एक सिंपल से क्वेश्चन ओरली ही करना है, उसको कॉपी लेकर नहीं करना है। सपोज 50 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन ए वायर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द करंट? बताओ यशस्वी, बताओ। ये 50 कूलम चार्ज, 5 एम्पियर। 50 कूलम बाय 10 सेकेंड मतलब 5 एम्पियर, ये समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ये टेंथ में भी आपको करवाया था। क्वेश्चन है, इफ 2 एम्पियर करंट flows in a wire in 10 second, calculate the number of electrons, calculate the number of, अच्छा। और यहाँ पर याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर में आएगा ना। ये तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं ना। आधा इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो कितना होगा? अरे बताओ कितना होगा? बताओ चंद्र प्रभा, बताओ। हाँ, पहले क्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखता हूँ, रुको मैं करके देखता हूँ कितना आ रहा है तुम्हारा। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है ना, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया आई इंटू टी, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर इंटू टाइम हो गया 10 सेकेंड, मतलब ये हो गया आपका 20 कूलम।
मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इज 20 कूलम. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट in 20 coulomb there are how many electrons. Now what is the charge of one electron? Charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So number of electron कैसे निकालेंगे? 20 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. तो 10 to the power 19 ऊपर आ जाएगा. ये हो गया आपका 20 into 10 to the power 19 divided by 1.6. इसको आप एक काम करिए, इसको अगर आप 20 इंटू 10 टू दी पावर 19 बाय 16 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिखा जा सकता है. तो 4 में कैंसिल होगा तो कितना होगा? 4 यहाँ पर हो गया 5. तो ये आ गया आपका 1.25. 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ये -1 ऊपर आ गया 20 हो गया. लेकिन 1.25 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा ये? इसको कैसे बताना है? 125 इंटू 10 टू दी पावर 18. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी को डाउट है तो पूछो अब. So the second question is suppose 10 to the power 10 number of electrons flows in a wire in 5 seconds. 10 to the power 10 number of electrons flows in a wire in 5 seconds. Calculate the current. कैसे होगा? जल्दी करो. First of all, you have to find out charge. Charge of one electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. So charge of 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 1.6 into 10 to the -19 into 10 to the power 10. C to 1.6 into 10 to the power -9 कूलम. ठीक है. तो करंट कितना होगा? Q बाय टी. तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय टाइम कितना? 5 सेकेंड. किसका किसका टीवी चालू है? ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा 5 से 5 15 300 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पियर. ठीक है. नहीं 3.2 नहीं, ये 0.32 हो गया ना. तो इसको 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -10 एम्पियर. और 32 इंटू 10 टू द पावर -11 एम्पियर. तो समझ में आया सबको कैसे करके करंट निकालना है, चार्ज निकालना है, ये सब चीज़ें करंट का बेसिक्स समझ में आया. मैं थोड़ा ऑन म्यूट कर रहा हूँ. ऑन म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लेते हैं आप लोगों से भी.